أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک الالام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے دنیا آخرت میں مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنائے. رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، ہم نے تم کو درمیانی امت بنا کے بھیجا. اور درمیانی امت سے مراد نہ دین میں زیادتی کرنی ہے نہ دین میں کمی کرنی. پچھلا جمعہ بھی ہم نے اسی موضوع پر سماعت کیا اور ہم نے سنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی شان کے اندر غلو کرنا، ان کی شان کے اندر زیادتی کرنا، ان کی شان کو ان کے مقام سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کے ذکر کرنا، یہ دین کے اندر زیادتی، یہ دین کے اندر غلو ہے. اور اس کی چند مثالیں ہم نے قرآن سے سنی تھی کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اللہ کے کوئی بیٹے نہیں، اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کئیوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کئیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کئیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کئیوں نے کہا مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں. تو اللہ کی شان کے اندر کمی کرنا، اللہ کی شان کے اندر زیادتی کرنا، اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر زیادتی کرنا یا کمی کرنا، اسی طرح نیکوکار لوگوں کی ہستیوں کے اوپر زیادتی کرنا یا کمی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ان کے مقامات سے، ان کے مرتبوں سے زیادہ بڑھا چڑھا کے ذکر کرنا اور رب کے برابر کر دینا، گویا کہ رب میں اور انبیاء کی ہستیوں میں کوئی فرق باقی نہ رہے، تو یہ زیادتی. یہ تقریباً باتیں ہم نے ساری سماعت کر لی، صرف ایک ذہن بنانے کے لیے یہ ساری باتیں ذکر کی. ہم بات سن رہے تھے کہ نیکوکار لوگوں کو رب کے برابر کرنا، نیکوکار لوگوں کو انبیاء کی ذات کے برابر کرنا، یا نیکوکار لوگوں کی شان کے اندر غلو کیسے کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا. گرجا کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے. کرسچن لوگ جہاں پہ جاتے ہیں اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ چرچ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا اور اس کا نقشہ اس انداز سے بیان کیا. دونوں بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اس گرجا گھر کو دیکھا، اس گرجا گھر کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہیں. جس طرح ہندو لوگ اپنے مندروں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ پتھروں کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، مجسمے بنائے ہوتے ہیں،
जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर गया तो कितने बुत थे? 360 बुत। आका अलैहिस्सलाम ने उनको छड़ियों के साथ गिराया नीचे, और क्या अपनी जुबान से कह रहे हैं, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया, बातिल भाग गया, और बातिल तो है ही भागने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जिक्र किया गया कि आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा मामला देखा, सुना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सा इलाका है? तो बताया गया ये हबशा का इलाका है। हबशा के इलाके का एक गिरजाघर, उसका नक्शा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया और बताया गया कि उस गिरजाघर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें हैं। लोग उनके सामने आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नजर न्याज करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना उलाइका इज़ा काना फीहिम रजुलु सालिहु फमात। ये वो लोग हैं, इन लोगों में से जब भी कोई अल्लाह का नेक बंदा फौत हो जाता, बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा, ये उसकी कब्र पर इबादत खाना बना लेते। नूह अलैहिस्सलाम का दौर आने से कबल या नूह अलैहिस्सलाम का दौर खत्म होने तक इस पूरी कायनात के अंदर शिरक जैसी कोई चीज नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम के पैरोकार, नूह अलैहिस्सलाम के इताअत गुजार, नूह अलैहिस्सलाम की इताअत करने वाले जैसे जैसे फौत होते गए, शैतान को मौका मिलता गया। शैतान आया, बड़ा वली सूफी मौलवी साहब बन के हाथ पे लाठी पड़ गए। और तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे नेकोकार लोग जो हैं, जो तुम्हारे साथ इबादत करते थे, तुम्हारे साथ खाते पीते थे, चलते फिरते थे, आते जाते थे, वो मर गए, क्या कभी याद नहीं आए? याद तो आते हैं। ये शैतान का शिरक के हवाले से इस कायनात के अंदर पहला वार है। हाँ, इससे पहले इसने वार किए हैं, हमारे माँ बाप पर वार किया, इसने जन्नत से निकलवा दिया, हमारे दो भाइयों को आपस में इसने लड़वा दिया। ठीक है, अब नूह अलैहिस्सलाम का दौर खत्म होने को है, फौत हो गए, नेकोकार बंदे फौत होना शुरू हो गए। बाकी जो बच कुछ गया लोग, ये उनके पास सूफी बन के आ गया और कहा वो तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ते थे, बातें करते थे, रोजे रखते थे, नेकी के काम करते थे, इकट्ठे आते थे, इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे खाते पीते थे। अब वो मर गए हैं, इस दुनिया से चले गए, क्या कभी उनकी याद नहीं आई? सामने कहा याद तो आते हैं, अब उनको कैसे भूल सकते हैं? वो बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे। तो फिर क्यों ना हो कि उनकी याद ताजा करने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि जब हम उन चीजों को देखें वो हमें याद रहे। ये पट्टी कौन पढ़ा रहे हैं? शैतान, इबलीस। इन्होंने कहा क्या किया जाए बाबा जी, फिर तुसी दस दो। मेरा ख्याल है कि तुहानू थोड़े बहुत नक्श तो उन्होंने याद होंगे, तो थोड़ी सी तस्वीरें तो उनकी याद होंगी। ऐसा करते हैं, हम उनकी तस्वीरें बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, अगर 50 बंदे हैं तो 10 बंदे इनकार करने वाले और 40 बंदे मानने वाले तैयार हो गए, ज़हन बन गए, यार बात तो सही है। 10 बंदे ने कहा नहीं नहीं, ये काम सही नहीं लग रहा। किस्सा मुक्सर, जब उन्होंने देखा कि 40 बंदे तैयार हैं, देखा देखी वो भी ऐड हो गए। अब तस्वीरें बन गई, मुजस्मे बन गए। अब करना क्या जी? इनको हमने पीछे रखना है, नमाज पढ़ के, सलाम फेर के या इबादत करके जब हम अपने घरों को वापस लौटेंगे, हम इन मुजस्मों को देखेंगे। देख के फायदा क्या होगा? हमें याद होगा, हमारे दिलों के अंदर इनकी मोहब्बत जिंदा रहेगी, इनकी मोहब्बत ताजा रहेगी। गोया कि हमें यूं लगेगा ये हमारे साथ ही हैं। शैतान वार कर गया, लोगों ने मुजस्मे बना लिए, लोगों ने उनकी तस्वीरें बना ली, उनके मुजस्मे बना लिए। कुछ वक्त गुजरा, इबलीस, शैतान दोबारा सूफी साहब बन के फिर इन्होंने कोल आ गया, बाबा जी बन के फिर आ गए। यार ये अल्लाह ताला के बड़े नेकोकार बंदे थे, ये पहुंची हुई हस्तियां थी, रब के बरगुज़ीदा बंदे थे। तो मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा है, यार हम इनको अपने पीछे रख रहे हैं, हम इनको इबादत करते हुए पीछे रख रहे हैं, ये इनकी बेअदबी हो रही है। इनकी शान के लायक ये अमल नहीं है। इनकी शान, इनका मर्तबा, इनका मुकाम तो ये है कि जिस सफ के अंदर तुम खड़े होते हो, अपने साथ इनको भी खड़ा करो। ये इनका अदब है, ये इनका एहतराम है। अगर पीछे रखेंगे ये नुकसान होगी, बेअदबी हो जाएगी, गुस्ताखी हो जाएगी, इनकी मोहब्बत में फर्क आ जाएगा। दूसरा बार भी करने में कामयाब हो गया। इन लोगों ने उठाया और अपनी सफों के अंदर रख के, अपने बगलों के अंदर, यानी कि बगलों के पास रख के, जिस तरह हम सफ बनाते हैं, एक बंदे के साथ दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, इसी तरह उन मूर्तियों को, उन मुजस्समों को इन्होंने अपने साथ सफों के अंदर खड़ा करना शुरू कर दिया। सूफी साहब चले गए,
अपना इतना काम करके फिर एक वक्त गुजरा, इसने तीसरा वार किया और ये इसका आखिरी वार था। और उस वक्त से लेके आज तक उम्मत को इस बात की फिक्र लाहिक होने की कभी जसारत नहीं हुई कि हम कर क्या रहे हैं। ये आया और आके इसने कहा, इनको अपने दाएं बाएं खड़ा करते हो, ये तो इतनी अजीम हस्तियां हैं कि इनको बिल्कुल अपने सामने, हाँ इबादत हमने अपने रब की करनी है, इबादत इनकी नहीं करनी। जिस तरह हम बहाना लगाते हैं ना, यार इबादत तो हम उसकी करते हैं ना, मांगते तो हम उससे हैं, लेकिन ये इंदे वसीले नाल मांगने। यही बात शैतान ने की थी। शैतान ने भी कहा हमने इनको अपने आगे रखना है। हाँ नहीं नहीं, इबादत तो उसी की करेंगे। और शैतान को पता था कि इन्होंने ज़हन में सवाल आ जाना है। शैतान कहता है इबादत तो अल्लाह की करनी है। हाँ, इनको सामने रखेंगे, सामने रखवा दिया, पहले पीछे थे, बगलों के करीब रख दिया, साथ ला के खड़ा कर दिया, अब उठा के सामने रखवा दिया और कहा ये अल्लाह ताला के नेकोकार बंदे हैं, इनको सामने रख के रब की इबादत करेंगे, रब का तकर्रुब ज्यादा मिलेगा, रब जल्दी मान जाएगा। फिर एक वक्त आया, इसने कहा इन्हीं से मांगो, ये रब के हाथ तुम्हारी सिफारिशें करेंगे, इन्हीं से मांगो, ये तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगे, ये तुम्हारी लाज रखेंगे, तुम्हारी इज्जत रखेंगे, तुम्हारी बिगड़ियां बनाने वाले ये हैं, ये रब के करीबी हैं। तो रब को पहुंचने लगे टाइम लग रहा है, इन्हों की रब मोड़ता ही नहीं। आप इनके आगे रखें, ये रब के आगे रखेंगे, आपकी सिफारिश बन जाएगी, ये दरमियान में वकालत का काम करेंगे। लिहाजा ये उस वक्त से चलता हुआ काम आज उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी गर्दश कर गया। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग हैं, इनमें से जब कोई नेक बंदा मर जाता था, बनो अला कब्रिही मस्जिदा, ये उसकी कब्र पर इबादत खाना बना लेते थे, इबादत खाना। वहां पे पूजा पाठ शुरू हो जाती थी। इबादत खाने में हम क्या करते हैं? ये इबादत खाना है ना, यहां पे बैठ के हम जिक्र भी करेंगे, यहां पे बैठ के हम कुरान भी पढ़ेंगे, यहां पे बैठ के हम इस्तिगफार भी करेंगे, यहां पे बैठ के हम तस्बीहात भी करेंगे, अल्लाह की तस्बीह भी बयान करेंगे। सारे जिक्र अज़कार का मजमुआ अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला की इबादत का घर, ये जो उसने हमें बताया है मस्जिद। अब यही सारी चीजें अगर एक बंदा कब्र में बैठ के पढ़े, किसी मकबरे के ऊपर बैठ के पढ़े, किसी मुजस्मे के ऊपर बैठ के पढ़े और ज़हन में हो मैं तो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची होगी कि नहीं? बनो अला कब्रिही मस्जिदा, नेक बंदा मरता था, ये उसकी कब्र पर इबादत खाना बना लेते थे, मस्जिदें बना लेते थे, वहां पे इबादतों का रवाज शुरू कर देते थे। वसव्वरू फीही तिल्का सुवर, और वो इस तरह की तस्वीरें बना के वहां पे लगा देते थे। आज हमारे यहां भी तस्वीरें इजाद कर गई हैं। हमारे यहां भी तस्वीरें हमारी गाड़ियों के अंदर लगी हुई हैं, हमारे घरों के अंदर लगी हुई हैं, हमारे दफ्तरों के अंदर लगी हुई हैं, हमारी दुकानों के अंदर लगी हुई हैं। किसकी तस्वीरें जी? वो उस वक्त की तस्वीरें। किसकी तस्वीर है? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है। ये तस्वीर किसकी है? ये गंज शकर सरकार की तस्वीर है। ये तस्वीर किसकी है? ये बाबा फरीद की तस्वीर है। ये किसकी तस्वीर है? ये बूरी वाली सरकार की तस्वीर है। ये किसकी तस्वीर है? ये नूरी बूरी सरकार है। और अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, मस्जिद के अंदर खड़ा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैंने 9 साल का अरसा, बल्कि 9.5 साल का अरसा गुलशन अभी में गुजारा है। वहां पे पढ़ा हूं, अल्लाह का शुक्र है, वहां पे पढ़ाया, वहां से सीखा, और आज टूटे फूटे लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी इन गुनाहगार आंखों से एक पीर साहब को देखा है, आज भी जिंदा है, और आपके करीब से गुजर जाए ना, पहली तो दुआ कि अल्लाह आपको वो दिखाए ही ना, आमीन कहते सारे। अगर वो आपके करीब से गुजर जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 10 मिनट तक तो नक जाना सलामत रहेगा। इतनी गंदी बदबू, वजह क्या है? नंगे पैर चलेगा वो, हाथों के नाखून इतने लंबे लंबे, पांव के नाखून इतने लंबे लंबे, नंगे पांव चलता है, जहां पे उसको वॉशरूम आया उसे वहीं पे बैठ जाना, छोटा बड़ा जो भी है, और उठेगा वैसे ही उसने अपनी सलवार को ऊपर करना है और चलना शुरू कर देना। और मुरीदों की पीछे लाइन है और वो जिंदा है और उसका दरबार मौजूद है। हम औलिया अल्लाह के गुस्ताख नहीं। एक पैगाम देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं कि यार मेरे नबी ने हफ्ते बाद एक दिन आता है जिसको कहा जाता है जुमा, गुस्ल करने का हुक्म दिया कि नहीं? हर बालिग आकिल को मेरे नबी ने हुक्म दिया कि वो जुमे वाले दिन क्या करे? गुस्ल करे।
پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے جس بندے کے بالوں کی لٹیں بنی ہوئی اور میل ایسے ہے کہ پتہ نہیں خود پکڑ کے زعفر لگائی ہے، اور وہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں، پہنچی ہوئی ہستی ہیں، دربار بنا ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور زندہ پیر کی قبر بنی ہوئی ہے. نام پتہ کی ہے؟ شبیر سائیں. شبیر سائیں کا نام سنیا ہوئے گا. اور وہ زندہ ہے، سمیل کا پورا ڈھیر، اور لوگ اتنے عقل کے اندھے. کرسی چوک کے اندر رکھی جاتی ہے، پیر صاحب آتے ہیں، سمیل سمیت اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. مرید آتے ہیں اور اس کے پاؤں کے نیچے ایک بڑا تاویہ یا بڑی پرات رکھتے ہیں، اور اس کے پاؤں کو دھویا جاتا ہے، اور وہی گندا اور غلیظ پانی، لفظ کرنے میں مجھے شرم بڑی آ رہی ہے، وہی مریدین پکڑ کے پیتے ہیں، بوتلوں میں ڈال کے اپنے ساتھ تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں. اللہ کی قسم جھوٹی بات نہیں کر رہا، پوری ذمہ داری کے ساتھ. ہم نے جو رتبہ رب کو دینا تھا وہ ہم نے سب کو دینا شروع کر دیا. یار میرے نبی کے صحابہ، کیا ان کو میرے نبی سے محبت نہیں تھی؟ دیکھنے والے نے دیکھا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. مکے کے چودھریوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا، جاؤ جا کے دیکھ آؤ محمد اور محمد کے ساتھیوں کا ارادہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان پر قابض ہو سکتے ہیں کہ نہیں، ان پر مسلط ہو سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھنے والے نے جو سین دیکھا تھا نا، جب واپس آ کے بتایا تھا، اور کیا بتایا تھا؟ اے مکے کے چودھریوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے ہاتھوں کو دھوتا ہے، صحابہ اکرام وضو کے قطرات کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. آقا علیہ السلام نے چہرہ دھویا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، صحابہ اکرام نے وضو کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیا. یہ تو محبت بنتی ہے، کیونکہ رب نے میرے نبی کو ایسی عظیم ہستی بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور رب نے ایک آئیڈیل بنایا، ایک نمونہ بنایا، عظیم ہستی بنایا. کل قیامت کو انہی کے علم کے نیچے، انہی کے پرچم کے نیچے، انہی کی رفاقت میں رب نے جنت کا داخلہ عطا کرنا ہے، جنت کا دروازہ انہوں نے کھلوانا ہے. اتنی عزت تو بنتی تھی. کہنے والا کہتا ہے جو وضو کے قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے نبی کے خون کے قطروں کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ تم لوگ کبھی ان پر غالب نہیں آ سکتے، کبھی انہیں پہچان نہیں سکتے. دوران طالب علمی میں چبوجی سے گلشنہ بھی جا رہا تھا تو ایک گاڑی چلانے والا اتنی گندی ڈرائیونگ کر رہا ہے، فرنٹ پہ لیڈیز بیٹھی ہیں اور ان کی چیخیں نکل گئی. وہ کہتی ہیں کہ میرے بھراوا تھوڑا ہولی چلا لے. ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں ہنس کے مذاق بنا کے پتہ کہ انہاں نوں کی پتا ہے اسی کنہ دے مرید ہاں، شبیر سائیں دے مرید اسی، سانوں کچھ نہیں ہوندا. نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ کی قسم ایک ایک لفظ پورا ہوتا نظر آتا ہے. آج آپ نے فرمایا نیک لوگ مر جاتے، ایک اہل زندہ سی نیک بھی نہیں گا، جس کو پاکی پلیدی کا احتیاط نہیں ہے، جس کو پاکی پلیدی کا لحاظ نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں نماز چیز کیا ہے. اور اگلی بات بڑی پتے کی، کتنی انگلیاں؟ 1 2 3 4، چاراں انگلیاں دے وچ چرس دے سگرٹ نے. ایک ایک کش لگا کے بعد جو مریدین سے تبرک دے طور پہ تسلیم، پولیس والے بھی ساتھ اور بڑے بڑے ادارے والے بھی ساتھ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. کون ہے جی؟ سائیں صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگ مرتے تھے، یہ ان کی قبریں بنا لیتے تھے، قبروں کو عبادت خانہ بنا لیتے تھے، اور اسی طرح کی تصاویر وہاں پہ لگا لیتے تھے. اب یہ باتیں ہم نے سن لی، غور کر لیا، سمجھ لیا، سیکھ لیا. اب سن لیں کہ ایسا کرنے والے رب کے نزدیک کس طرح کے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صحیح بخاری کی 427 نمبر حدیث ہے، یقین نہ ہے گھر جا کے خود اس کا مطالعہ کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرنے والا اللہ کے نزدیک کل قیامت کو سب سے گندا ترین بندہ، غلیظ ترین بندہ ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی ہستیوں میں غلو کرنا، نیک لوگوں کی شانوں کے اندر غلو کرنا، زیادتی کرنا، ان کو اتنا مقام دے دینا کہ نبی کا برابر بنا دینا یا رب کے برابر بنا دینا. اور اللہ کے نزدیک ایسا کرنے والا یہ گناہ گار ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں شعر و شاعری ہوئی تھی نا پچھلے جمعے ہم نے سنا، کہنے والا ان پیروں کے متعلق بھی وہ اپنی زبان کو اپنے شاعرانہ انداز میں اس طرح بیان کرتا ہے،
लोकी तेनू पीर मानते, असी तेनू रब मन्निया। अस्तगफिरुल्लाह। सारे पढ़ लें जरा एक बार। हमारा रब कौन है? जिना जिना तो है बोलो जरा। हमारा रब कौन है? अल्लाह। कहां पे है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। रहमान जो अर्श पर मुस्तवी है। वहदहू ला शरीक ला, जो अकेला है, उसका कोई सानी नहीं है। अल्लाह समद, इन जैसों से अल्लाह बेनियाज है। लोकी तेनू पीर मानते, असा तेनू रब मन्निया। शिरक किया, शिरक के साथ कुफर किया कि नहीं? और सामने बैठे बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, फला फला फला। अकल के अंधे तेरी अकल पर उठा उसरा फिरा हुआ है। तुझे अकल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि वो लफ्जों के अंदर कितना बड़ा कुफर कर रहा है। एक आम बंदे को जो खुदा की मखलूक है, उसको तो खालिक बना रहा है, खालिक के बराबर बना रहा है। दूसरा बोला, लोकी अरशा दे उत्ते लभदे ने, रब बोरी वाले दे ओले आ बैठा। पंजाबी समझ लगी कि नहीं? नहीं समझ लगी? ये आपके सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, मेज है, डाइस बोर्ड है। मेरी टांगे आपको नजर आ रही हैं जो सामने बैठे हैं? ये ओले ने, यानी कि छुपियां हुई ने, ठीक है। वो कहता है लोकी अरशा दे उत्ते लभदे ने, किनों? अल्लाह नो। लोग अरश के ऊपर रब को ढूंढते हैं और रब अरश से उतर के बूरी वाली सरकार के पीछे आके छुप के बैठा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। यार रब की ताकत अल्लाह माफ करे इतनी ही कम हो गई है। फिर जलजले ना आए, फिर सैलाब ना आए, फिर बेमौसमी बारिशें ना हो, फिर क्लाउड बरस ना हो, फिर जमीन तहस नहस ना हो, फिर हमारे घरों के नुकसानात, हमारे जानी नुकसानात, हमारे माली नुकसानात ना हो, तो फिर और क्या हो? रब की रहमत बरसे हमारे ऊपर। फिर इस्लामाबाद के अंदर ऐसी शदीद किस्म की बारिश हो कि जिसके अंदर इतने इतने मोटे औले हों, वहां पे मसाजिद के शीशे, बिल्डिंगों के शीशे, गाड़ियों के शीशे टूट जाएं। जब हमारी करतूतें इस तरह की होंगी, जब हमारे अमाल इस तरह के होंगे, तो अल्लाह की कसम ये अजाब तो फिर छोटा है। फिर तो उस तरह के अजाबों का इंतजार करो कि रब ने इस पूरी की पूरी जमीन को यहां से उठाया, आसमान के करीब किया और वहां से फरिश्तों को हुक्म दिया, इसको वापस पटखा दो, उल्टा दो, और ऊपर से इनके ऊपर नोकदार नुकीले पत्थरों की, नामदार पत्थरों की इन पर बारिश करके इनको हिला कर दो। हमारे हालात तो ऐसे हैं, इस तरह के हमारे अमाल और इस तरह के हमारे हालात हैं। अल्लाह ने समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, रब की इबादत हो, रब की जात हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हो, अल्लाह के नेकोकार बंदे हो, अल्लाह के नेकोकार बंदे। इबादत में गुलूब करना भी जायज नहीं, रब की जात में गुलूब करना भी जायज नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन सिखाया है उसमें ज्यादती करना भी जायज नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की शान को, आका अलैहिस्सलाम की शान और मर्तबे से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करना, यह भी गुलूब है, यह भी जायज नहीं। इसी तरह रब की मखलूक में से नेकोकार बरगुज़ीदा अल्लाह के वली बंदों को इतना बढ़ा चढ़ा के या नबी के बराबर कर देना या रब के बराबर कर देना, यह भी दीन इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, और ये गुलूब है और ये ज्यादती है, और ऐसा करने वाला रब की अदालत में मुजरम होगा। अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, ये बात हमें समझ लगी कि नेक बंदों की शान में और अंबिया की शान में गुलूब नहीं करना। अब मामला आता है इबादत करने का। बाद लोग इबादत में गुलूब करते हैं, हद से तजावुज़ कर जाते हैं, और ऐसा करना भी दुरुस्त है। दीन जितना आ गया है उतना ही, उससे कम करेंगे तब भी नुकसान, अगर ज्यादा करेंगे तब भी नुकसान। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला में बयान करते हैं, रसूलुल्लाह, तवज्जो है ना, हम इबादत की बात करने लगे। किसकी? सारे बोलो, इबादत की बात करने लगे। नमाज पढ़ना इबादत है, सारे बोले। बात जल्दी समझाना चाहता हूं। नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, एक दूसरे को सलाम करना इबादत है, हज करना इबादत है, उमरा करना इबादत है, सच बोलना, झूठ से बचना, ये सारी इबादत ही है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहज की सुबह को आप आका अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर बैठे। कौन सी ज़िलहज? 10 ज़िलहज की सुबह नबी अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर बैठे और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाथी उल कुतली, ऐ मेरे सहाबी मुझे कंकरियां दो। मतलब 10 ज़िलहज को हाजी क्या करते हैं? जमरात। जमरात का मतलब होता है शैतान को कंकरियां मारना।
कुछ चेहरे मेरे सामने बैठे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने हज जैसी नेमत से नवाजा। दुआ करो ना कि अल्लाह हम सबको इसी साल अपने घर की जियारत के लिए, हज के लिए बुला ले। कंजूसी नहीं करनी, आमीन कर लगे। अल्लाह हम सबको इसी साल हज बैतुल्लाह का शरफ नसीब फरमाए, हम सबको उम्रे की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमें उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, हज करने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर बैठे और अपने सहाबी को कहा कि मुझे कंकरियां दो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साइज की कंकरियां उठा के दी जो चने के साइज से थोड़ी सी बड़ी हैं। चने का दाना देखा है ना, इस साइज से थोड़ी सी बड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने हाथों में लिया और देखा और फरमाया बि अमसालि हाउलाई, लोगों इसी, बल्कि अपने सहाबी को तलकीन कर रहे हैं, इसी तरह की कंकरियां ही चुन के शैतान को मारना। व इय्याकुम वल गुलूव फी दीन, और खास तौर पे दीन में गुलूव करने से बचना। फइन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलूव फी दीन, तुमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं उनको रब ने हिलाक ही इसी वजह से किया है कि उन लोगों ने अपने दीन में गुलूव करना शुरू कर दिया, ज्यादती करनी शुरू कर दी। अब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन ली, सहाबी ने अपने हाथों से चुन के दी वो कंकरियां, वो पत्थर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के कहा कि इसी साइज की तुम भी चुन लो, इसी साइज की ही मारना, इससे बड़े साइज की नहीं। आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, जब जमरात पर जाते हैं, शैतान को कंकरियां मारने को कहते हैं जमरात, जब वहां पे वो कंकरियां मारने के लिए जाते हैं तो सोशल मीडिया पे की कुछ नहीं देखी जा, बड़े बड़े रोड़े पड़े अंदर, इतने इतने बड़े बट्टे, और पूरे पोज बना के जिस तरह को थ्रो नहीं मारने लगे विकेट, ठीक है, उसको मारते हैं। फिर कई अपनी चप्पलें उतार के मारते हैं, किसको? शैतान को। और कई कंकरियां मारते हुए, चप्पलें मारते हुए शैतान को गालियां निकालते हैं। ये दीन में गुलूव नहीं है, ये दीन में ज्यादती नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रब ने जो कुरान उतारा है, कुरान ऐलान कर रहा है मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जितना काम मेरे नबी ने कहा है ना उतना ही करना है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे मना कर दिया, जिससे रोक दिया, उससे रुक जाओ। जो आपने किया है उतना ही करना है, जिस तरह आपने कहा है उसी तरह करना है, जितना करके दिखाया उतना ही करना है। जो आपने नहीं किया, नहीं बताया, नहीं कहा, दीन इस्लाम की रोशनी में वो मना है, उससे रुक जाना ही बेहतर है। यही इताअत है, यही फरमाबरदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब ने जो दीन उतारा है और नबी इस्लाम की निस्बत फिर आगे सहाबा इकराम से चलता चलता दीन जो मेरे और आप तक पहुंचा है ना, इतना प्यारा दीन, अल्लाह की कसम पूरी कायनात के अंदर इस जैसा दीन, इस जैसा मजहब आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पे हमें इबादत की तरबियत दी है ना, वहां पे नबी अलैहि सलाम ने मेरी और आपकी तरबियत ये भी की है, मुसलमान का दूसरे मुसलमान को गाली निकालना ये फिस्को फजूर वाला काम है, और यहां तक नहीं, बड़ा कबीरा गुनाह है। इसके साथ तरबियत करते हुए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला तसुब्बु शैतान, लोगों शैतान को भी गाली नहीं देनी, हालांकि वो बुरा है, वो रब का बागी है, वो मरदूद है, वो लानती है, रब ने उसको जहन्नम रसीद करना ही करना है, रब का वादा है। लेकिन इसके बावजूद दीन इस्लाम ने मेरी और आपकी तरबियत क्या की है? एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की मां बहन को गाली देना, एक दूसरे के बहन भाइयों को बुरा भला कहना, वो तो बड़ी दूर की बात है। जो इतना गलीज तरीन है ना शैतान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको भी गाली देने से मना किया, तो मुसलमान को गाली देना कैसे लायक हो जाएगा? अच्छा, नबी इस्लाम मना कर रहे हैं शैतान को गाली नहीं देनी। बंदा हज करने के लिए गया है और कंकरी मारते हुए शैतान तेरी ऐसी की तैसी प्लांटिंग तो मुंह से गालियां निकाले, क्यों जी? उन्हें हज का जरा अजर है वो सलामत रहेगा। हज और उमरा ये दो ऐसी चीजें हैं कि नबी साहब ने फरमाया इसका हक अदा करने वाला हक अदा करके जब वापस आता है तो ऐसे ही होता है जैसे उसकी मां ने उसको आज पैदा किया है, गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। लेकिन अगर उसके हाथ से, अगर उसकी जुबान से, अगर उसके जिस्म से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो और उसने वो तकलीफ सॉरी कह के या अपने अंदाज मुआफ ना करवा ली हो, यानी कि किसी का हक इस पर हो, तो फिर इसके उस अजर में कमी होगी कि नहीं? और शैतान तो यही चाहेगा कि इतना बड़ा अजर ये कैसे लेके वापस जाए, इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा रब का फजल कि रब ने इसको बिल्कुल दूध की तरह सफेद कर दिया, गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो गया। वो चाहेगा तुम्हारे हज के, तुम्हारे उम्रे के अजर को जाया करवाने की कोशिश करेगा। वो कंकरियां मारते हुए तुम्हारी जुबान से बेशक गाली निकलवा दे,
बात समझ आइए, कुछ पहले पढ़ी है कि नहीं? इबादत की बात कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुजू के मुताल्लिक सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू का तरीका क्या है और आज़ा को कितनी कितनी मरतबा धोना है। मेरा आपसे सवाल है, वुजू के जो आज़ा हैं वो कितनी कितनी मरतबा धो सकते हैं? कम अज कम कितनी मरतबा धो सकते हैं? कम अज कम कट्टो कट के ना, और ज्यादा से ज्यादा नहीं जी। असं तो बाहरों मोटरसाइकिल चला के आई मुंह तो कटा पिया होंगे, पर साबन भी तो लाना होंगे ना, हाथों पे भी डस्ट होती है, वो भी तो धोने होंगे ना। ये काम आप पहले कर लें। आपने मुंह को साबुन लगाना है, आपने ब्रश करना है, मिसवाक करनी है, और आपने धार धार करके कुलियां करनी है, आपने हाथों को धोना है, पांव को साबुन लगाना है, जो कुछ करना है या तो वुजू से पहले कर लें या वुजू मुकम्मल करने के बाद ये काम कर लें। वुजू के आज़ा कम अज कम एक मरतबा, लेकिन अगर हाथ एक मरतबा धोए हैं, कुल्ली भी, सबक याद कर लें, कुल्ली भी, नाक पे पानी भी, चेहरा भी, बाजू भी, सर का मसा तो है एक मरतबा, कानों का खिलाल भी एक मरतबा, इसी तरह पांव भी, और अगर दो मरतबा तो सारे के सारे रुकन, बोलो सुते गए यार, सारे के सारे रुकन। अगर 3 मरतबा हाथ धोए हैं तो सारे के सारे रुकन 3 मरतबा, और अगर हाथ धोए हैं 4 मरतबा या हाथ धोए हैं 3 मरतबा, कुल्ली कर लिया 4 मरतबा, चेहरा धो लिया 5 मरतबा, और पांव धोते वक्त तो मुझे ख्याल ही नहीं आ पता नहीं कितनी बारी मैं मालपुर पे धो लेना। ये क्या किया हमने? बोलो यार, मैंने आधा घंटा हो गया समझा जाना। ये ज्यादती की हमने। ये हमने क्या किया? किसमें? दीन के अंदर। दीन इस्लाम ने हमें उसूल समझाए हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वुजू करके दिखाया, तमाम आज़ा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा धोया। अब आका इस्लाम ने फरमाया, फमन ज़ादा अला हाज़ा फक़द असा व तअद्दा व ज़लमा। ये 3 मरतबा मैंने करके दिखा दिया है, जो बंदा इससे ज्यादा करने की कोशिश करेगा उसने बुरा किया, उसने जुल्म किया, उसने ज्यादती की, उसने गुलम किया। बात समझ आ गई? अगर एक बंदे का वुजू सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक होगी। एक बंदे का वुजू सुन्नत के मुताबिक नहीं, सुन्नत के उसूलों के मुताबिक नहीं, क्या उसकी नमाज के अंदर वो असर होगा? क्या उसकी नमाज कबूल होगी? नमाज के लिए शर्त क्या है? नमाज के लिए वुजू शर्त है ना, कि जो वुजू शर्त के मुताबिक ना हो, कानून के मुताबिक वुजू ना हो, तो नमाज होगी? अल्लाह ने समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, इसी तरह नफली बातें की जाती हैं, अल्लाह हमें भी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। की कहना है? आमीन। सब तक आवाज गई है? अल्लाह हम सबको फर्जी भी और फर्जी प्लस नफली इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। क्या कहना है? जरा बुलंद आवाज से। यार बाज़ औक़ात ना कबूलियत की घड़ी का पता नहीं होता। जो दुआ की जाती है ना, कंजूसी ना किया करे, उस पर आमीन कहें। न जाने किसके मुंह की निकली भी आमीन हम सब की जिंदगियों की हालत अल्लाह बदल दे। इस वक्त मुश्किल तरीन हालात के अंदर हम सब दो चार हैं, पूरा मुल्क दो चार है। मुसलमानों पर सितम हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, फिलिस्तीन लुट पुट रहा है, सारी सूरत हम सबके सामने। तो जो दुआएं की जाती है ना, उस पर गौर फिक्र बेशक आधा कर लेते, इंशाल्लाह मैं सोच समझ की दुआ कराऊंगा इंशाल्लाह। आमीन कहते हुए कंजूसी नहीं करनी। बात कर रहे हैं हम नफली इबादत के, अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। हमें फराइज को भी अदा करने की तौफीक दे और नफली इबादत भी करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए थे और आका सामने सबसे पहला जो खुतबा दिया था ना, उस खुतबे के अंदर ये पैगाम और मैसेज था। आपने क्या फरमाया था? सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। जहां पे आपने फरमाया अफ्शुस सलाम अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम, सलाम को आम करो, सिला रहमी करो और खाना खिलाओ। अतइमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाओ। वहीं पे नबी इस्लाम का चौथा फरमान ये था, सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, और जब लोग सो रहे होते हैं उस वक्त कौन सी नमाज होती है? एक तो होती फजर दी, एक ने फजर दी होती, और दूसरी जोर असर भी हो सकती है, उस टाइम बंदे में थकावट होती। अच्छा जी, मगरिब इशा, सारा दिन काम काज करके बंदा थका हारा घर आए और आके उसको ठंडा ठंडा पानी मिले, कमरे में एसी में चिल मिले, तो मगरिब टाइम भी नींद आ ही सकती है कि नहीं? फिर मगरिब टाइम नींद आ जाए तो कच्ची नींद में बंदा उठ जाए, फिर सिर के दर्द भी होनी शुरू हो जाती।
इशा फिर जो है ना वो ऐसे रहती रहती, कोई नहीं 5 गई। अब ये बंदा रात को उठ के तहज्जुद पढ़े तो रब क्या कहेगा? जो रब ने तेरे ऊपर फर्ज की थी उनका तो तूने एहतमाम नहीं किया। अब रात की तहज्जुद रब क्या करे? रब ने नफलों के मुतल्लिक तुझसे नहीं पूछना, रब ने तुझसे फराइज के मुतल्लिक पूछना है। हाँ, नफली इबादत करने में कराहत नहीं, रब का करीबी बन जाएगा, रब का तकर्रुब मिल जाएगा। लेकिन तू नफली के पीछे लगा और फर्जी को तू इग्नोर करी जा रहा है। समझने वाली बात है कि नहीं? नबी इस्लाम फरमाते हैं उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग रातों को सो रहे हो। इससे मुराद रात की नमाज तहज्जुद की नमाज है, लेकिन फराइज की अदायगी पहले लाजम है, इनका एहतमाम लाजम है। उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हैं। ये नफली इबादत, इसी तरह नफली रोजे, इस तरह अपने ज़कात फर्ज की है, उसके अलावा अगर आप फर्ज करते हैं कि नफली सदका कर लें, ठीक है, ये सारी नफली इबादत आप कोई भी कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी आका अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां हैं? एक हदीस के मुताबिक 9, दूसरे हदीस के मुताबिक 11। आका अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहहरात में से किसी एक बीवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाई 3 बंदों की। वाकया याद आ गया? 3 बंदों की शिकायत लगाई। वो बेसिक नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आए थे और पता करने आए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का जोरो शोर क्या होता है, आप कितनी इबादत करते हैं, आप कितने रोजे रखते हैं। तो पूछा नबी अलैहिस्सलाम के मतलब पता चला कि आप तो घर पे तशरीफ फरमा नहीं है। सवाल करने वाले ने, तीनों बंदों ने सवाल किया और गालिबन अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत इस तरह का, इतनी इबादत आप करते हैं, इतने आप रोजे रखते हैं, इतना आप कुरान पढ़ते हैं, इतना जिक्र अज़कार करते हैं। अब ये तीनों बंदे सुन रहे हैं, तीनों वहीं पे खड़े होकर कहते हैं। एक बोला कि मैं तो सारी जिंदगी अब इस बात पर हमेशगी करूंगा, कभी नागा नहीं डालूंगा, मैं सारी सारी रात क़याम करता रहूंगा। क्या करता रहूंगा? सारी सारी रात, अल्लाह हमें भी करने की तौफीक दे, सारी सारी रात क़याम करता रहूंगा। दूसरा बोला आज से जब तक मेरी जिंदगी है ना, मैं हमेशा रोजे ही रखता रहूंगा, कभी नागा नहीं करूंगा। तीसरा बोला कि यार अगर बंदे ने शादी कर ली, शादी करके बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा, मसरूफियत हो जाएगी, फिर उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की मोहब्बत, फिर उनके दीगर जिंदगी के मामलात, उस वक्त पैंपर नहीं से पैंपरा सीजन बना के रखना, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो जिस तरह एक तन्हा इंसान रब की इबादत कर सकता है खुल खुला के, उस तरह रब की इबादत नहीं कर सकता। लिहाजा मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपने साथ वादा करता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। ये तीनों अपने अपने जुमले के आगे चले गए। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौन सी भी बीवी थी, आका इस्लाम के आने के बाद इन तीनों बंदों की शिकायत लगाई गई, इन तीनों बंदों की हालत का जिक्र किया गया। आका अलैहिस्सलाम फौरन उठे, मस्जिद में गया और तीनों बंदों को बुलाया, फरमाया अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम ही तीनों वो शख्स हो जिन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। जी अल्लाह के नबी, झूठ बोलना तो अल्लाह के नबी ने सिखाया नहीं ना, हम तो बात बात पे झूठ बोलते हैं और साथ में कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन है, उम्मती हैं। आका इस्लाम पर तन मन धन सब कुछ कुर्बान, लेकिन ये जुबान से झूठ कुर्बान नहीं होता हमसे। नबी इस्लाम ने फरमाया तुम ही वो जिन्होंने ऐसे ऐसे कहा। जी अल्लाह के नबी, हमने कहा। फरमाया अमा वल्लाही इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम लहू, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं तुम तीनों से नहीं बल्कि पूरी कायनात से ज्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूं। क्यों जी, है कि नहीं ऐसा? नबी अलैहिस्सलाम एक ही मजलिस में कितनी मरतबा इस्तिगफार कर रहे हैं? 100 मरतबा। मैं आप अपना अपना मुहासबा करें, एक पूरे दिन में 100 बार हम इस्तिगफार नहीं करते। जिनको रब ने मासूम बना के भेजा वो एक मजलिस बर्खास्त करने से पहले 100 बार इस्तिगफार कर रहे हैं, और हम सारे दिन मीटिंगें, मजलिसें, झूठ, गीबतें, चुगलियां, फ्रॉड, धोखा, ये सारा कुछ करने के बाद भी 100 की गिनती हमसे पूरी नहीं होती। दूसरे को नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया, बल्कि इज्तिमाई नबी अलैहिस्सलाम ने भी बात की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुमसे अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हूं, मैं रातों को क़याम करता भी हूं, मैं रातों को सोता भी हूं, मैं शादियां की भी हैं, मैं रब की इबादत भी करता हूं, अपने बीवी बच्चों को भी टाइम देता हूं। इसके साथ तीसरे बंदे को खबरदार किया कि मैं रोजा रखता भी हूं और मैं रोजा अफ्तार करता भी हूं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने तुम पर तुम्हारे जिस्म का हक रखा है, तुम पर तुम्हारे माँ बाप का हक रखा है, तुम पर तुम्हारे बीवी बच्चों का हक रखा है, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है। अगर इसी तरह ही अपने आप को थकाते रहोगे और ये समझते रहोगे कि ऐसा करके हम रब का कुर्ब पालेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना कर दिया। मना क्यों किया?
یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کے اندر بھی غلو کرنے کی دین اسلام نے اجازت نہیں دی. تصور کریں اگر نفلی عبادت کے اندر دین اسلام کے اندر ایسا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے تو کسی چیز کو فرضی بنا کے پیش کرنا, کسی چیز کو خود ساختہ فرضی بنا کے پیش کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس پر انشاءاللہ اگلے دن میں بات کریں گے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.